Let's start. Okay, so we'll start with the Fourier series MCQ. I hope all of you can see the screen. Fourier series Yes, and sir. harmonic analysis. Yeah. I hope you remember the Yes, sir. definition of periodic function. A function fx is said to be periodic of the period t if what? Option A. F of x plus t. F of x plus t is equal to f of x. F of x plus t is equal Yes. to f of x, f of t. F of minus x is equal to f of x. This is the definition of odd function, right? Sorry, this is the definition of even function. This is for even. This is for odd. So definitely these are not the definition. These are not the definition of periodic function. This is also not a periodic function because periodic means what? After this time or after this period, you are going to get the same value f of x, right? So what is the answer? Option A. A. Option A. Okay. Now listen here. Sometimes answer A is correct. But see, listen here, everyone. Sometimes you have to find out, like you have to do 50-50. Which one is wrong, you have to cut it out. जो wrong आपको लग रहे वो पहले cut कर दो and then you think about the right answer, right? So sometimes you have to do it like that. Now if you look at the second one, f of x plus nt is equal to f of x, where n is an integer, then the fundamental period of f of x is. See, this is called as a general period. N into t is a general period. What is the fundamental? Fundamental means what? It is the smallest period of all. What is the fundamental? 2t, t by 2, t or 3t? T. Or t by n? I will add one more. No, T. just T, sir. Is it t? Yes, sir. T? T by 2, sir. Yeah, it is t. Yes, sir. T is correct. No, see, listen, I explain this part. Listen. For example, if you consider sin x function, what is the period for sin x function is 2 pi. Right? Even for cos x is also 2 pi. Now, if you consider any multiple of this, 2 pi, if you consider any multiple of this, like 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, 11 pi, 12 pi, any multiple of this thing, that will be also a period. But among all this one is the smallest one. That is called as a fundamental period. Okay. So here, if nt is the general period, then the fundamental period is t. The answer is C. Is that clear with the second one, everyone? Yes, sir. Second कळालं सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. If fx is a periodic function with the period t, तो fx का period t है, तो f of ax का period क्या होगा? Anyone? T by T A. by By A. A. T by A. Correct. By A. So fundamental period for f of ax will be t upon a. For example, as I told you, sin x का fundamental period होता है 2 pi. तो sin 4x का कितना होगा? Sin 4x का होगा 2 pi by 4. That is that fundamental period. That is t divided by this a. Right? To remember this. So if t is the fundamental period of f of x, then for f of ax, t by a is the fundamental period. So answer is B. Is that right? All of you getting this? No doubt. Yes, sir. So that is your next question. Question number 4. Fundamental period for sin 2x is, what do you think? Pi. 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 Sin x का 2 pi होता है ना, तो 2 pi by 2 होगा. So here the fundamental period for sin 2x will be 2 pi by 2. So can I say it is pi simply? Is it? What will be the fundamental period for cos of 2x? Also pi, sir. Again Pi. pi, because for cos x, 2 pi is the fundamental period, and since we have 2, a is 2, so again the answer will be pi. The fundamental period for cos of 2x will be pi. Okay, what is the fundamental period for tan x? Pi by 3. Pi. तो by tan 3. x का pi है, tan x का pi है, तो Pi. tan x Pi. का क्या होगा? It will be pi. Do we have that answer? Yeah. Answer is B. Yes, sir. Okay. Right. So I'm going to share this PDF to you all. Don't worry. So I'm going to share this PDF. Fourier series representation of periodic function fx with the period 2 pi which satisfy the Dirichlet conditions. Okay. Do you remember how to write on the Fourier series for any function? A0 by 2. So listen, A0 by 2 is there in all the options. So it is there. Now you have to concentrate on period also. So period is 2 pi. Okay.
So which one is correct? A, B, C, or D? A. Now see, if you observe here, there is a product. Now listen here. Here there is a product. This is wrong because we are actually going to add A and there is a series. Na? Series means addition is there. So C is wrong. Now the option will be either A, B, or D. What do you think? Which one is correct? Now there is no summation here. If you check, there is no summation. It is not a series at all. So D is also wrong. Okay. So हमने दो कट कर दिए C and D. So either option will be A or the option will be B. What do you think? A. A. Why A? Think it is A. Because they have not Because L cancelled is pi good. I or could- second B L Yeah, option. is because here Because we have L L value and is pi. pi. L value is pi. All of you agree with this? L की value pi होगी ना, right? So if L is pi, here actually we are having, if you remember, cos of n pi x by L. So this L and this pi will get cancelled and you are going to have only cos nx and sin nx. This pi will not be there. Are you getting? Is that fine? Are you getting the explanation for this one? Yes. So Yes, answer sir. will be A. Okay, is that fine, everyone? Answer is A. 8. It is representation of the periodic function fx. 2L. Now ध्यान दो यहाँ पे. Period is 2L, not 2 pi. You have to take care of period every time. आपको period देखना है ठीक से. 2 pi लिखा है, 2L लिखा है. Which satisfy the Dirichlet condition. तो A naught by 2 तो सब में है. तो ये भी हो सकता है, ये भी है, ये भी है. सब में A naught by 2 है. Okay. Product नहीं चलेगा. Okay, because it is a series. Series means summation. तो C is wrong. तो answer इसका A, B या D में है. What do you think? Which one is correct? D, sir. D, अगर sir. आप B देखोगे ठीक से तो यहाँ पे A1 लिखा है, देखो A1 B1. तो ये गलत है या सही है? सही है. ये wrong है ना? गलत. Because N तो वेरी होना चाहिए. यहाँ पे इन्होंने फिक्स रखा है. तो B is also wrong. B and C is wrong. तो you have to think about A and D. D. A, sir. A होगा? D. No, answer will be D. No. Listen, answer इसका D आएगा. क्यों? Because यहाँ पे L की वैल्यू L ही होगी. लास्ट वाले प्रॉब्लम में यहाँ पे 2 पाई दिया था, देखो, राइट? यहाँ पे L दिया है, तो यहाँ पे आपको जनरल इंटरवल कंसीडर करनी पड़ेगी. L will be L. तो यहाँ पे n pi x by L आना चाहिए ना? Are you getting? Yes, Is it sir. right? कळालं का हे सगळ्यांना? Yes, It sir. cannot No, sir. be A. ये आंसर कब आएगा मालूम? जब L की वैल्यू 1 होगी ना. अगर L की वैल्यू 1 होती है, then this answer is correct. Okay, but right now L is not 1, it is L. Is it fine? Answer is D. Yes, sir. Every time you have to think, you have to check out what is the period, what is the interval that you have to check out all the times. 9. If fx is a periodic function with the period 2L, इस पे ध्यान दो, ये 2L है. And interval ये है, देखो, C to C, 2L. ये आप C, C plus 2L. So, can you tell me A naught की वैल्यू पूछे उन्होंने, A naught की वैल्यू. What do you think? A naught में खाली fx होता है, देखो. फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, और जिसे मैं सोच रहा हूँ आपको भी सोचना है एग्जाम में, ऐसे ही सोचो. एवरीवन यू हैव टू थिंक लाइक दिस. जो गलत है ना वो पहले मिटा दो, तो आंसर आपके चांसेस गलत होने के कम हो जाएंगे. ये आ सकता है क्या? सी बताओ, सी आ सकता है क्या? A naught में fx होता है ना, No, sir. तो ये No, नहीं sir. आ. B आ सकता है क्या? No. No, No, sir. तो ये दोनों तो नहीं है पक्का, बिकॉज A naught में ओनली D है. आंसर इसका A होगा या D होगा? व्हाट डू यू थिंक? D. A क्यों नहीं है? A is also wrong because 1 upon L is here. 1 upon L है. Right? I hope you remember the formula. It is 1 upon L Yes, integration. sir. जो कुछ भी इंटरवल है वो लिखनी है, C, C plus 2L f of x dx. Is it right? So can I say answer is D? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Then आगे A and B n पूछे होंगे. Now A n, as I told you, A n के साथ क्या आता है हमेशा? Cos Cos. x by Right. A n के साथ हमेशा cos आएगा. तो ये आंसर गलत है, ये भी गलत होगा, बिकॉज देर यहाँ पे साइन है और यहाँ Option पे C. कॉस ही नहीं है. option तो C. आंसर ए और सी. सी क्यों और ए क्यों C. नहीं? C. Why not A? 1 1 by Because- L. 1 upon L is missing again here. 1 upon L missing है ना यहाँ पे. तो आंसर इज C.
I hope all of you know this 1 upon L C to C plus 2L fx cos of n pi x by L. Remember, with an always cos will be there, and with bn always sin will be there. Okay. So from 11, can you tell me what are the wrong answer? Wrong answer बताओ कौन कौन से होंगे wrong. AC and D. AC and D. Wrong. I'm asking you wrong ACD. answer. bn है. ACD. CD. C or C wrong C होगा. and There is no sign. ये भी wrong होगा. तो आंसर A या B होगा. B. B. Sir, B. B. B या C, because यहाँ 1 by L missing है. Are you getting the idea? गलत पहले निकाल दो और then you think about the right one. If you know directly right, then you can take it. Don't waste time. Even function. So even function means I hope you remember f of minus x is equal to X is equal to F of minus X. type होता है ना इस केस में. A. Which one is correct? A, B, C or D? A. A. Answer is A. Right? Yes, sir. 13th. B. The function fx is said to be odd. B. Odd कब होता है? B. Minus sign B. बाहर. Minus X. Minus f of x. So is it B? Yes, sir. Which of the following is an odd function? Odd function को Sin size. Sin Sin X. Sin X. Sin X. Yeah. Listen here. Sin x. You remember sin x. You remember it like this. Whenever you think about odd function, you think about sine function. Whenever you think about even function, think about cos function. Okay. Now they are asking you even function. So sin x तो even Cos नहीं X. आगे. Cos x. Cos X. Cos कर दो X. directly देखने के B. Even. तो cos x will be even. Okay. तो answer is okay. 16. Which of the following is neither even nor odd? Even भी नहीं है, odd भी नहीं है. ऐसे देखना है. x पर even होगा या odd होगा? Even. Even ये होगा. even होगा ना, because power 2 है. देखो तो ये even है. ये क्या होगा? देखो ये odd है, ये भी odd है. Odd into odd क्या होता है? Even. Even. पहले वाला even है, दूसरे वाला even है. ये थर्ड वाला देखो, ये odd है, ये even है. Odd into even क्या होता है? Odd. तो ये odd होने वाला है. Okay. You treat odd means remember minus sign, even means plus sign. So you remember it like this, plus minus. Now e raised to minus x ये even भी नहीं होगा, odd भी नहीं होगा. क्यों? Because जब आप f of minus x निकालोगे ना, तो ये e raised to x हो जाएगा. देखो ये दोनों सेम नहीं दिख रहे, तो even नहीं हो सकता. ये minus of e raised to minus x भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये odd भी नहीं हो सकता. तो this will be neither even nor odd. तो answer is C. Is it fine? Yes. Yes, sir. मैंने देखा कि ये नहीं even है, ये even है, ये odd है, तो neither even nor odd का केस चाहिए ना हमें. तो आंसर इज C. ओके. टेल मी द 17th वन. fx इंटरवल क्या दिया है? देखो ध्यान दो. डू यू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ इंटरवल? माइनस पाई टू पाई, पॉजिटिव नेगेटिव. आई होप यू रिमेंबर ऑल ऑफ यू. व्हेनेवर यू हैव अ पॉजिटिव नेगेटिव एंड यहाँ पे इवन फंक्शन लिखा है, देखो. हाँ बोलो. ई रेस टू मायनस एक्स परत रिजन सांगा ना एकदा प्लीज. Listen here, what your function is, e raised to minus x is your function, right? Odd function कब कहते हैं हम? जब f of minus x का minus f of x आया तो उसको odd कहते हैं, right? और plus f of x आया तो even कहते हैं. This is clear, right? यस सर. यस. अभी मुझे चेक करना है कि ये जो फंक्शन है मेरा e raised to minus x, ये even है या odd है. तो मैं क्या करूंगा? x की जगह डालूंगा minus x. तो ये क्या होगा? e raised to plus x हो जाएगा. Yes? यस सर. ये f of x है क्या? Is it you f of x? f of x जैसे दिख रहा है ये? नहीं ना? No, because f of x is e raised to minus x. Is it look like minus f of x? Minus f of x कैसे दिखेगा मालूम? ऐसे दिखेगा. ये है ना आपका minus f. ऐसे दिख रहा है क्या ये? नो. तो ये ऐसे भी नहीं दिख रहा है और ऐसे भी नहीं दिख रहा है ना. तो it is neither even nor odd. यस Are you सर. getting it गॉट now? इट. यस सर. थैंक यू. Okay. और should I keep it there? मैं रखूँ क्या वो? जिसको नहीं समझ में आ रहा है. हाँ, yes, sir. I'll keep it there. Fine. Now you think about 17th. ये 16 का आंसर है. And C. 17th even function है. ध्यान दो. even function है. even function में कौन जीरो होता है? याद रहो. even function में कौन सा Bn जीरो? zero. Bn. bn zero. Keep this thing in mind.
इन केस ऑफ इवन फंक्शन bn इज ऑलवेज 0. ओके, तो हमें जहाँ पे bn दिखाई दे रहा है ना, वो आपका गलत आंसर है. नहीं, ये गलत है, A and ये D. गलत है. तो आंसर आपका बी या सी है. व्हाट डू यू थिंक, विच C. वन इज करेक्ट, बी और C, सी? C, C. 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 बी क्यों रॉन्ग है Yes, sir, बताओ, C. व्हाई बी इज रॉन्ग? Sir, because L sir, के base का है. C is correct. L is equal to pi. So that's L equal why to L we is get equals to Very pi. good. So listen here. L is इस केस में आपको L निकालते वक्त आई होप यू रिमेम्बर माइनस एल टू एल को कंपेयर करना है ना इसको, या C कॉमा C प्लस टू एल के साथ कंपेयर किया तो भी चलेगा. तो L की वैल्यू यहाँ पे पाई आने वाली है, तो वो L एंड पाई कैंसिल होने वाले हैं. रिमेम्बर, L एंड पाई कैंसिल होने वाले, तो पाई नहीं दिखना चाहिए आपको. तो यहाँ पे तो L दिखाई दे रहा है आपको, तो इट शुड नॉट बी देयर एक्चुअली. तो दिस इज रॉन्ग. तो आंसर इज C. ओके. Now 18th is odd function. Odd है. L की वैल्यू क्या होगी? Can you tell me? L की वैल्यू क्या है यहाँ पे? L is again pi. तो वो pi कैंसिल होना चाहिए, ध्यान दो. Now in odd function क्या क्या जीरो आते हैं आपके? A नॉट जीरो आता है. A naught and A. ये दोनों जीरो आते हैं. तो both these terms will be zero in case of odd function, right? ये दोनों जीरो आने वाले हैं. तो ए नॉट एन जहाँ पे दिखाई दे आपको वो तो गलत आंसर है. ये गलत है, ये गलत है. तो आंसर विल बी आइदर ए और डी. व्हाट डू यू थिंक, कौन सा सही होगा? ए. मैंने बोला ना एल नहीं दिखना चाहिए. ओके, तो आंसर इज ए. यहाँ पे एल दिखाई दे रहा है, सो डी इज रॉन्ग. राइट. आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग. Yes, sir. 19th फूरियर कोएफिशिएंट फॉर इवन फंक्शन. ये वही पूछा है वापस. तो बट यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको, वापस एल की वैल्यू पाई होगी यहाँ पे. इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन तो bn जीरो. bn कहाँ जीरो दिखाई दे रहा है, देखो. तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो दोनों में. तो ये गलत है, यहाँ पे bn लिखा है, ये गलत है. तो आंसर आपका एक तो बी है या सी है. बट सी में देखो तीनों जीरो दिए, ऐसे तो होगा नहीं. व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज करेक्ट? B. बी. तो मैंने देखा भी नहीं क्या सही है, वो लिखा क्या है. बट आई नो दैट कि इवन फंक्शन में bn ऑलवेज हमेशा जीरो होता है. तो a इज रॉन्ग, d इज रॉन्ग. तो ऑप्शन विल बी आइदर b एंड c. तो बट c में सभी जीरो है, तो वो रॉन्ग होगा. यू हैव टू थिंक अगेन. आई एम टेलिंग यू, यू हैव समटाइम्स अगर आपको कंफ्यूजन है प्रॉब्लम में इसका आंसर क्या आता है, तो 50-50 करो. दैट मीन्स जो गलत आंसर है वो मिटा दो एंड देन यू थिंक अबाउट द करेक्ट आंसर. ओके, ऑड फंक्शन है, एल की वैल्यू वापस पाई आएगी. Pi. ए नॉट एन जीरो आनी चाहिए. तो ये आंसर नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पे ए नॉट दिखाई दे रहा है. तो आंसर आपका सी भी नहीं होगा, तीनों जीरो है. तो आंसर आपका ए या डी है. व्हाट डू यू थिंक? D. पाई कैंसिल होना चाहिए ना. bn के साथ देखो, यहाँ पे bn के साथ cos आता है क्या कभी? नहीं, sin. No, bn sir. के साथ sin आता है ना, तो ये रॉन्ग है. तो आंसर इज डी. इज इट राइट? ऑलवेज रिमेंबर an के साथ cos एंड bn के साथ sin आता है. राइट. इज इट फाइन विद 20th प्रॉब्लम, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान दो. कैन यू टेल मी यहाँ पे आपका l क्या होगा? अभी पाई नहीं है, देखो. व्हाट इज योर l? L. L. l इज l. यहाँ पे l आपका l ही होगा. राइट. और कौन सा फंक्शन पूछा है? इवन. इवन में bn जीरो. तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर. bn जीरो है. B. और ये भी नहीं होगा. तो मैं देख भी नहीं रहा हूँ, देखो ये करेक्ट आंसर. जीरो नहीं हो सकता. तो ए नॉट आएगा, एन आएगा एंड bn जीरो होगा. इज इट राइट? एंड फॉर्मूले भी याद रखो. 2/l. यहाँ पे क्या होता है इवन ऑड फंक्शन में? हाफ ही इंटरवल करनी है, लेकिन उसको 2 टाइम्स करना है, डबल करना है. ओके, तो दैट विल गिव यू द टोटल एरिया. राइट. तो आंसर इज बी. यहाँ पे एल क्या है बताओ 20 सेकेंड में? L. एल इज एल. एल इज एल. ओके, बोला है. कैन यू टेल मी A naught A रॉन्ग zero. आंसर कौन से इसमें? रॉन्ग आंसर बताओ कौन से? ए नॉट एन जीरो होना चाहिए ना. B. B आई एम and आस्किंग C. यू wrong. रॉन्ग आंसर. रॉन्ग First आंसर. wrong है. B, C. Wrong answer.
C. Wrong answer I am asking. B and C is wrong sure because A. A, B, C. A. A या D में ABC. आंसर है आपका A, A या B, D. C बट wrong. वापस BN के साथ क्रॉस आया है देखो. Yes sir. Yes, सही है sir. ये? Wrong. Wrong है. Wrong है. तो what will be the answer? D. Answer D. will be D. Is it okay? Everyone getting it? Yes, sir. Yeah, half range. Okay. Now half range Fourier cosine series. ध्यान दो. I hope you I remember. I told you. Cosine means what? Even. 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 Yeah. Even function. Cosine means even. And half range का मतलब क्या चेक करना है आपको? 0 to L के साथ 0 to L. या तो हाफ रेंज मींस ये याद रखो 0 to L. कोसाइन मींस इवन याद रखो. ओके. तो कैन यू टेल मी व्हेन यू कंपेयर द इंटरवल 0, L to 0, L, L is L आएगा. L. Yes, L is sir. L. राइट. Yes, sir. नाउ इवन है कोसाइन मींस इवन तो bn 0 होगा. bn is 0 तो ये BN 0. नहीं आनी चाहिए. ये टर्म नहीं आनी चाहिए बिकॉज bn 0 है तो वो bn वाली टर्म ही नहीं आएगी ना. तो योर आंसर विल बी आइदर B और C. Which one is C. correct? C, sir. C. यहाँ पे पाई गायब किया है देखो. दिखाई दे रहा है पाई नहीं है इसमें. आर यू गेटिंग? सो आंसर विल बी Yes, C sir. because a naught by 2 an cos of n pi x by L because L will be there. L है ना. Yes, sir. Sine means Odd. Odd. sine means odd. Half range means 0 to L. 0 to 0 L to के साथ L. कंपेयर करो तो L is L. Mm. L होगा ना. Yes, sir. तो कैन यू टेल मी C और कौन C से गलत करेक्ट है। रॉन्ग होंगे? रॉन्ग होंगे. और C मींस और a naught an 0 होने चाहिए. रॉन्ग कौन ये गलत होगा. C or D wrong. Yes, sir. D. C and D D रॉन्ग है. गलत. आंसर आपका A A. या B में है. D. B. Yes, sir. B. A भी नहीं होगा. B. पाई गायब किया है देखो यहाँ पे देयर इज B. नो पाई. तो इज इट B? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है कैसे हम वो गलत आंसर निकाल रहे हैं. राइट. 25th in harmonic analysis for a function with period 2 pi the term a1 cos x plus b1 sin x. फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं हार्मोनिक एनालिसिस में? First harmonic. First harmonic. harmonic. It is called as first harmonic. In general, if you remember, nth harmonic ऐसे दिया जाता है. an cos of nx plus bn sin of nx. अगर आपका l पाए तो यहाँ पे l पाए है. Because of अगर l पाए नहीं होता तो n pi x by l आता है यहाँ पे. But l pi that's why it is an cos nx plus bn sin x. This is called as a nth harmonic. ये आपका nth harmonic होता है. But since they are asking you first harmonic, it will be a1 cos 1 cos x. Can you tell me second harmonic कैसे दिखेगा? A2. A2 cos x plus B2 sin x. Sin x. A2 cos 2x plus B2 Yeah, a2 cos of 2x plus b2 sin of 2x आएगा. ध्यान दो. That will be your second harmonic. Same with third and fourth and all so on. Now in harmonic analysis, the amplitude of the first harmonic. Do you remember the amplitude of first? Root A1 square plus root B1 And square. root A1 square square plus plus B1 B1 square. square. Yeah, so this is the amplitude of nth harmonic. Okay. तो फर्स्ट हार्मोनिक का क्या होगा आंसर? A, B, C or D? C. Is it C? Because n के जगह 1 डालेंगे ना because they are asking you first harmonic. Amplitude of first harmonic is A1 square plus B1. What is amplitude of third harmonic? Amplitude of third harmonic. In root A3 Under root square A3 plus square plus B3 plus square. In root B3 square. A3 square plus B3. अरे थर्ड हार्मोनिक एम्पलीट्यूड क्या होगा? Under Under root A3 A3 square square plus plus B3 B3 square. square. plus B3 square. Under root A3 square plus B3 B3 square. plus B3 square. Now 27th is very easy. Okay. What you want to find out? See, just have to capture what you want. E naught we want to find out. E naught हमें चाहिए. With the period 6, we have to see हमेशा Fourier series के problem में period is very important. Please mute yourself everyone. Okay, तो ध्यान दो. ये problem में कोई एक easy way बताऊंगा.
कि आपको सॉल्व कैसे करना है. फर्स्ट प्रॉब्लम आई विल सॉल्व इन डिटेल, देन सेकंड एंड थर्ड तो इजी होंगे. देन I hope you remember the formula for A naught, everyone, for harmonic analysis. What is A naught? 2 by m. 2 by 2 by m. 2 by m is equal to summation Summation Of yi's by i. of y. That means सभी yi जो है ना yi, उनका sum निकालना है और 2 by m करना है. Now what is m? M is nothing but number of intervals. Okay. Can you tell me how many intervals are there? देखो ये एक है, दो है, 6. 2 3 है, 3 4 ये 6 5 है. आप बोलोगे यहाँ पे 5 इंटरवल्स दिखाई, 5. बट और एक है इसमें 6 को कौन सी एंट्री होगी? 9 Nine. sir, 9. 9. 9. पीरियोडिक फंक्शन है ना, तो देखो पीरियड 6 है ना, तो 6 को पहली वैल्यू रिपीट होगी. नेक्स्ट नंबर होगा 7, 7 को आएगा 18, 8 को आएगा 24. वापस ये रिपीट होने वाला है साइकिल, राइट. तो यहाँ पे एक और एक कॉलम है 6, इसका यूज नहीं करेंगे हम, बट ये है एक्चुअली. तो यहाँ पे आपका m जो है वो 6 है. ऑल ऑफ यू गेटिंग m 6 है. Yes, sir. yes sir m इज नथिंग बट नंबर ऑफ इंटरवल्स. आपको दो ही टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, ध्यान दो. हार्मोनिक एनालिसिस में ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं. एक तो m6 होता है या m12 होता है. ध्यान दो, इतने ही दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. m आइदर 6 और 12. गलती से भी आपका m ऑड नहीं होना चाहिए. बी केयरफुल. Okay, either 6 or 12. No 5, no 11 like that. So your m should be 6 or 12. Okay. So if you put these values there, can I say it will be 2 by 6 into sum of y? Sum of y means what? Ye 9 plus 18 plus 24 plus 28 plus 26 plus 20 and divided that. Can you tell me that sum? 125 Is it 125? 125 ये 125 आएगा. तो can I say it will be 125 by 3? yes sir तो is it 41.66 41.66. Is it right? yes sir So here याद रखो, in 28, 29, 30 तीनों प्रॉब्लम में, can you tell me what is your m in तीनों प्रॉब्लम में? m 6 m6. All of you are getting m6 है तीनों में. yes sir वो 2 by 6, 1 by 3 ही होने वाला है. ध्यान दो, 1 by 3 ही होने वाला है, राइट. और आपको क्या करना है, ध्यान दो. ये वैल्यू जो है ना, ये 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 वैल्यूज ऐड करो. सर 6 इंटरवल है इसलिए 6 लेंगे ना. ऐड करके 3 से डिवाइड करो. कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर 28? इसका सम y का सम डिवाइडेड बाय 3. यहाँ पे भी सेम y का सम डिवाइडेड बाय 3. यहाँ पे भी सेम y का सम डिवाइडेड बाय 3. चलो, कैन यू टेल मी द वैल्यूज ऑफ a नॉट इन ऑल दिस 3 प्रॉब्लम्स? सब निकालो. 28 में 3 कैसे लिया? सॉरी, 28 में 3 कैसे लिया? 1 by 3. हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना. एक्चुअल फॉर्मूला क्या है देखो, लिसन हियर. मैं वापस एक बार बताता हूँ. एक्चुअल फॉर्मूला जो है ए नॉट को, वो ऐसे है 2 by m और सम ऑफ y. और यू कैन से लाइक ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 2 times सम ऑफ y by m, दैट इज एवरेज ऑफ m, एवरेज ऑफ y. ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एवरेज 2 times एवरेज ऑफ y और 2 by m times समेशन ऑफ y. बट m हमेशा 6 है ना सब में. देखो दिख रहा है क्या, m 6 है. m इज नथिंग बट नंबर ऑफ इंटरवल. ये क्लियर हुआ क्या सबको? m 6 है. yes sir Yes, sir. तो ये हमेशा 2 by 6 आएगा ना. आर यू गेटिंग? yes sir तो 2 by 6 कितना होगा? 1 by 3. इज इट राइट? हर प्रॉब्लम में 1 by 3 आएगा ना. इज इट ओके नाउ? Yes, sir. sir और फिर सम ऑफ y निकालो. कैन यू टेल मी द सम ऑफ y इन 28 और डिवाइडेड बाय 3 कर दो. 23.46 23.46. या तो इसका आंसर 23.46 आ रहा है, चेक करो. Yes, yes sir. sir 29 में वापस इनका सम निकालो. 4 plus 8 12 14. 27 14. 42 14. Is it 14? Yes, sir. Next means इनका एडिशन करो. 1 plus 1.4 2.4 2.4 plus 4.3, then this one 6 7.5 and then 8.7 divided by 3. Can you tell me the answer? Is it 2.9? 2.9.
Yes, sir. 2.9. Take out. I hope you are getting the trick. तो देखो जब भी ए नॉट पूछेंगे आपको एक ही आइडिया करना है, जितने भी y के वैल्यूज है उनका सम निकालो डिवाइडेड बाय 3 कर दो. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑल ए नॉट वैल्यूज. इज इट ओके एवरीवन? हर बार बिकॉज m तो फिक्स होने वाला है आपका, m6 होगा, बट एक बार फिर भी चेक करो, ज्यादा वैल्यूज होंगे ना आपके तो m12 आता है. सर फाइन विद दिस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अप टू 30 क्लियर हो गया? 27, 28, 29, 30 ये आपको एमसीक्यू में आने वाले हैं प्रॉब्लम. बी केयरफुल, ये 100% आपको एमसीक्यू में आएगा, 100%. ओके, should we go to 31? Now your actual Fourier series problem start with this problem. 31 is the actual problem. Okay, और यहाँ पे शायद आपके भी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे. ओके, तो ध्यान दो, लिसन हियर. ए नॉट निकालना है. ओके, इंटरवल देखो पहले. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एल? pi. Pi, sir, Pi. pi. All of you are agree L is Pi. pi because c plus 2l के साथ कंपेयर करो. 0 to 2 pi इंटरवल है, l की वैल्यू pi हो जाएगी, राइट? द l is pi, करेक्ट. e नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? 1 upon l, so it is 1 upon pi. Is it right? 1 upon pi. Yes, sir. Yes, sir. From 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. Is it right? fx, what is my function? e raised to minus x. E raised to Is minus it correct? x. Yes, sir. Any Yes, doubt sir. in this formula? No doubt in this? So, तो 1 upon pi. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to minus x का माइनस e raised to Minus x. माइनस e raised to 0 minus to 2 x, pi. और फिर इसमें डाल दो अपर लिमिट लोअर लिमिट. तो ये होगा 1 upon pi. When you put upper limit, be careful, put the bracket. Minus e raised to minus 2 pi Minus 2 pi. minus upper limit minus lower limit minus e raised to 0. Now e raised to 0 is 1. 1. ये होने वाले वैल्यू 1. तो माइनस माइनस by प्लस 1 pi. होगा, तो योर फाइनल आंसर विल बी 1 1. minus. इसको मैं 1 लिख देता minus, हूँ. 1 minus e raised to minus 2 pi. Do we have this answer? sir, Option A. Option A. Yes, sir. Option number Option 1. A. ऑप्शन नंबर ए. तो ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा. मैंने पहले अपर लिमिट डाला. अपर लिमिट मीन्स क्या? x की जगह 2 pi डाल दिया. माइनस माइनस वेरी इंपॉर्टेंट है. माइनस देन लोअर लिमिट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, चलो अभी 32 और एक करते हैं. 32 में ए नॉट पूछा है वापस. ओके, पहले आपको एल फाइंड आउट करना है. कैन यू टेल मी एल क्या होगा? Pi. 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 ओके, तो ए नॉट कैसे दिखेगा? ए नॉट विल लुक लाइक 1 upon pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. Function is what? Can I write it as pi minus x का whole square by 4? ऐसे लिख सकता हूँ इसको. Yes, sir. पूरे का स्क्वायर है ना ये? Is it correct? Yes, sir. तो ये 1 upon 4 में बाहर ले लेता हूँ, तो is it 1 upon 4 pi? और pi minus x square का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 times pi minus x, Pi. और डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव ना pi का 0, तो is it minus 2? इसका डेरिवेटिव is it integration of, oh sorry I did the derivative there. Derivative. So what will be the integration of this? Is it pi minus x Pi का minus cube x cube. divided by 3 into minus Yes, sign sir. भी आएगा. Okay, Yes, and then sir. you put the 0 to 2 pi. I hope you are getting everyone. Yes, sir. कुछ डाउट है इसमें? Sir, No, why sir. minus 3? Yeah, because see here, जब आप f of x का raised to n है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 into एक्चुअली इसका डेरिवेटिव लिया जाता है, एंड वो जो डेरिवेटिव वो नीचे लिखते हैं. ओके, तो फॉर एग्जांपल हियर पाई माइनस एक्स का जब स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो ऐसे आएगा 2 plus 1 upon 2 into इसका डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव -1 आने वाला है. Minus 3. Is it right? Getting this now? Yes, sir.
बड़ा लगा हो सर Yes, sir. Minus. yeah. Now here you put the limit to 1/4 will be as it is. फिर अपर लिमिट डालो पहले, दैट इज 2 पाई पुट करो पाई की जगह, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई का क्यूब डिवाइडेड बाय -3. दिस इज योर अपर लिमिट, बी केयरफुल. ये अपर लिमिट हो गया. माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, विल इट बी पाई माइनस 0 का क्यूब Minus 0. इज इट ओके? Yes, sir. तो इट विल बी 1/4 पाई. व्हाट इज दिस, पाई माइनस 2 पाई कितना होगा, माइनस पाई. तो इज इट Minus माइनस pi. पाई बाई 3 Minus pi cube. by minus 3. Minus. And what about 0? This will be pi cube upon -3 or ये minus. So will it be Minus. plus pi cube by 3? Because ये minus sign है ना. Yes, sir. तो ये भी plus होगा, ये भी plus होगा. तो ये 2 pi times cube by 3. 2 times pi cube by 3. तो एक pi cancel होगा, 2 2s cancel होगा. So do we have pi square by 6 answer? Pi square by 6. Yes, sir. Option B. पहला प्रॉब्लम था इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है. नाउ इफ यू आर यूज्ड टू विद दिस, आपको थोड़े फास्ट करने पड़ेंगे प्रॉब्लम, बिकॉज एक प्रॉब्लम के लिए कितने मिनट दे सकते हो आप, 2 मिनट्स. ओके, ओनली 2 मिनट्स यू कैन स्पेयर फॉर अ प्रॉब्लम, बिकॉज ओनली 2 मिनट्स आर देयर एंड विद इन दैट 2 मिनट्स यू आर सपोज्ड टू सॉल्व, और ये हो जाता है 2 मिनट्स में. ओके, तो बी केयरफुल, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. बी केयरफुल, एक भी प्लस माइनस गलत होगी पूरी सीरीज में तो गए आपका आंसर. तो इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाय 6. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. Yes, sir. डाउट नहीं है. चलो 33 थोड़ा आप बता अभी, एल क्या होगा, एल पाई pi, एल अगेन, एल इज पाई, एल होगा पाई. सेम ए नॉट निकालना है हमें. ओके, तो फंक्शन x इंटू साइन एक्स है फंक्शन, राइट. तो ए नॉट कैसे दिखेगा, should I write it here? It may be bit small. I hope you can see this. Yes, sir. Is it 1/pi? Yes, sir. 0 to 2 pi. I hope it is visible to all. Yes, Yes, sir. sir. X into Yes, sir. Now, do you remember the U into V rule, modified UV rule or Bernoulli's rule? L'Hopital's. Yes, sir. L'Hopital नहीं यूज करना है यहाँ पे. We are not indeterminate. We are not solving indeterminate. Bernoulli's rule, UV rule, modified UV rule. क्या होगा डेरिवेटिव, x as it is, पहले x लिखो. sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, Minus cos माइनस कॉस minus cos x. माइनस x का डेरिवेटिव 1 एंड माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, Minus. Minus. Minus sin x. यूवी रूल यूज मत करते बेटो, यूवी रूल से लेंदी होगा, ये से इजी हो जाता है. आई होप ऑल ऑफ यू नो मोजिला डिवीजन, यू नो यूवी रूल. Mozilla? Yes, sir. Yeah. So that rule I am using over here, and you can easily get the answer here. So what it will be, 1/pi. Okay, चलो 2 pi डालेंगे तो क्या होगा, 2 pi if you put, तो ये टर्म तो जीरो होने वाली है पक्का, बिकॉज साइन 2 pi जीरो होता है. ओके, और cos 2 pi होता है 1. तो कहने से फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, ये होगा 2 pi, ये होगा 1. तो ये -2 pi फर्स्ट टर्म, -2 pi. या -2 pi. सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगी तो चला गया, अपर लिमिट इतना ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट जीरो डालोगे तो ये टर्म जीरो और साइन जीरो, तो ये जीरो ही बनने वाला है. फर्स्ट टर्म इसकी वजह से जीरो होगी, सेकेंड टर्म साइन की वजह से जीरो होगी. तो योर आंसर विल बी सिंपली -2 pi by pi. तो पाई पाई कैंसिल, -2. -2. Do we have -2? Yes. I hope you are getting, everyone, no doubt. Yes, sir. चलो E नॉट pi. Can you tell me what is L? ये इंटरवल है, देखो आपकी ये पूरी इंटरवल है, 0 to 2 pi इंटरवल है आपकी. Pi. तो L is Pi. pi. L is pi. Right? E naught कैसे दिखेगा? How my E naught will look like? E naught is 1/pi. 1/pi. 0 to 2 pi पूरी इंटरवल लेने वाला हूँ, 0 to 2 pi fx. बट 0 to 2 pi में हमने उन्होंने डिवाइड किया है ना दो पार्ट में, एक x है और एक 0 है.
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ये जो इंटरवल है 0 to 2 पाई, इसको हमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे हम इसको? यू कैन राइट इट एज 0 to Pi. पाई, ये आपका 0 फर्स्ट to होगा। pi. और 0 to पाई में फंक्शन की वैल्यू क्या है? X. ये x भी है। और दूसरा इंटरवल क्या होगा आपका? पाई टू Pi. 2 Pi. Pi 2 to 2 pi. to pi. पाई टू 2 पाई, बट पाई टू 2 पाई में 0 है ना वैल्यू, 0. Yes. तो ये तो 0 ही होने वाला है, ये टर्म छोड़ दो इसको, खाली ये सॉल्व करना है ये पार्ट। तो ये होगा 1 अपॉन पाई, इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर 2 तो व्हाट इट विल बी, 0 के लिए तो 0 ही होगा, तो इट विल बी 1 अपॉन पाई इनटू पाई स्क्वायर बाय 2, पाई पाई कैंसिल, so is it pi by 2? Pi by 2. That means I hope you are getting everyone. तो 34 Yes, का sir. yes, आंसर sir. 35। L बताओ वापस, L Pi. Pi. L is pi, Pi. pi इसमें ओके, ये नॉट निकालना है, तो इट विल बी 1 अपॉन पाई। वापस दो टुकड़े करने पड़ेंगे हमें 1 इंटरवल upon के, pi. तो एक लिखो 0 टू पाई, 0 टू पाई में फंक्शन की वैल्यू 0 है, और दूसरा इंटरवल क्या है, पाई टू 2 पाई, 0. X dx. यहाँ पे x है, X dx. तो ये तो 0 बन जाएगा, ये खाली हमें सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। तो इट इज 1 अपॉन पाई, क्या आएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, और फिर यहाँ पे 2 पाई एंड पाई डालना पड़ेगा, इट विल बी 1 अपॉन पाई। 2 पाई डालोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर 4 pi square 4 4 पाई pi स्क्वायर बाय 2 by 2. माइनस square पाई स्क्वायर बाय 2, Pi square by 2. minus तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 3 पाई स्क्वायर बाय 2 3 pi square by 2. 3 pi. square by 2. बाय 2, तो एक पाई कैंसिल, इज इट 3 3 pi by by 2. 2. 3 by 2. तो आंसर विल बी 3 पाई बाय 2। Option A. अरे समजते हैं ना सगळ्यांना? हो. हो इज इट sir. राइट? Yes, sir. तो 36 बताओ अभी, L क्या होगा? 3 by 2. 3 वेरी गुड, तो L विल बी 3 3 by बाय 2. 2 नॉट 3। हाँ, by 2. हाफ रेंज पूछा होता, आपकी इंटरवल 0 to 3 है, देखो ध्यान दो, ये इंटरवल 0 to 3 और हाफ रेंज वगैरह बोला है क्या कहीं पे? नहीं, हाफ रेंज बोला होता तो 0 to L के साथ कंपेयर करते, बट हम इसको किसके के साथ कंपेयर करेंगे, C, C प्लस 2L, C तो 0 है, तो 2L इज इक्वल टू 3 आएगा, तो L की वैल्यू 3 by 2 आएगी। बी केयरफुल हियर, L कळालाय का सगळ्यांना? हो सर. Yes sir. हो सर. ओके, Yes, sir. 3 by 2। कैन यू टेल मी A नॉट कैसे देखेगा? A नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन L, बी केयरफुल, 1 अपॉन Two. पाई नहीं होता है, 1 अपॉन L होता है, 2 by 3. 1 अपॉन 3 by 2, तो ये 2 by 3 2 हो by जाएगा, 3. 2 by 3. 2 by 3 पूरी इंटरवल लेनी है हमें, 0 to 3 लेनी है। ओके, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन, 2x minus x, 2x minus x square. इज इट ओके? Yes. ये कैसे दिखेगा, 2 by 3, चलो इसका इंटीग्रेशन बताओ, विल इट बी 2x 2x square by 2 2x square by 2. आने वाला है, माइनस minus x x क्यूब cube minus x cube by 3. By 3. 0 to 3 डाला है, 0 के लिए तो 0 ही होने वाला है, छोड़ दो उसको, खाली 3 वाला वैल्यू डालो, तो ये होगा 9 माइनस 27 by 3, 9 minus 27 by 3. ये भी 9, इज इट 0? 0. Yes, sir. 0 सर. झिरो. ऑप्शन बी. प्रॉब्लेम कळाला का सगळ्यांना? हो सर. एक की Yes, वैल्यू sir. 3 by Yes, 2 sir. की वाई समझी क्या सबको? इसको ध्यान Yes, दो, sir. कंपेयर करना है C, C प्लस 2L के साथ, जनरल इंटरवल है, Plus 12. C 0 होगा और 2L इज इक्वल टू 3, तो L इज इक्वल टू 3 by 2। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलो 37, इंटरवल क्या है बताओ, यहाँ पे 0 to 2 है इंटरवल, तो इसको अगर L C, is equal to 1. के साथ कंपेयर करोगे तो C 0, L कितना होगा? 1. 1. 1, 1. वेरी, One. L इज 1, L की वैल्यू 1 होगी, इज इट ओके? Yes sir. क्या निकालना है हमें, A नॉट, चलो तो A नॉट होगा 1, 1 by 1 इज 1, 0 to 2, खाली यहाँ पे लिमिट्स बदल गए, बाकी कुछ नहीं है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 minus. 1 तो छोड़ दो, इसका इंटीग्रेशन आएगा 4x माइनस एक्स क्यूब 4x. 3, पुट इट देयर, तो कैन आई से इट इज 8,
8 minus 8/3 -8/3 कितना आएगा? 16/3. 16/3. 16/3. by 3. I hope in this way you can solve all the examples. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Problems? Just let me check. कितने problems? There are number. 5 problems are there. Out of 55, 38 तो हमने सॉल्व कर दिए. देखो 38 कैसे करोगे? इंटरवल क्या है बताओ यहाँ पे? -π to π. -π इसकी to π. स्पेशलिटी है, कुछ चेक करना पड़ता है क्या? -π to π आया तो No, इवन sir. है या ऑड है चेक? वेरी Even गुड. है, odd. Even है, odd है. करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. -π to π आया तो चेक करो कि ये जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है. तो काम बढ़ जाएगा, नहीं तो आप पूरा सॉल्व करते बैठोगे तो इट विल टेक टाइम. तो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है चेक करो. तो मैंने x के जगह -x डाल दिया तो क्या होगा बताओ? तो will it be +x here? Will it be -x here? Will it be -π less than -x less than 0, 0 less than -x less than -π? Are you getting what I did? मैंने x की जगह -x डाल दिया. ओके, बट यहाँ पे ध्यान दो, हमेशा इंटरवल में +x चाहिए आपको. तो अगर मैंने इसको +x किया तो ये सभी इंटरवल चेंज हो जाएंगे. तो कैन आई राइट इट एज π 0, then ये 0 is greater than π. Now ये छोड़ दो, ये चेक करो. ये आपके fx जैसे दिख रहा है क्या? x कहाँ पे है? देखो 0 to π के बीच में fx है क्या? ये देखो 0 to π के बीच में x है. एंड -π to 0 माइनस यहाँ पे माइनस है ये प्लस ही है. Given function. तो -π to 0 के बीच में -x है. तो ये इट इज. तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट माय f of x. Yes, sir. ओके, तो हमने स्टार्ट किया था f of -x से और मिला हमें f of x. कैन आई से दिस फंक्शन इज इवन? Yes, sir. Yes, sir. करू का हे परत का कळालंय सगळ्यांना? परत एकदा सांग. क्या किया देखो, मुझे चेक करना था कि ये फंक्शन इवन है क्या नहीं. क्यों चेक किया मैंने? बिकॉज मुझे इंटरवल इस टाइप की मिली. जब भी आपको इंटरवल माइनस एंड प्लस मिलेगी ना, -π to π, -l to l, -a to a, दैट काइंड ऑफ इंटरवल जब भी होगी तो इवन ऑर्डर चेक करो. तो x की जगह मैंने -x डाल दिया. तो ये प्रॉब्लम हो गया, +x हो गया यहाँ पे -x हो गया, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा. ओके, बट इंटरवल के हमें +x चाहिए. तो मैंने क्या किया, इस इंटरवल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, राइट? तो ये देखो, ये ऐसे आएगा आफ्टर मल्टीप्लाई. और अभी कंपेयर करो ओरिजिनल फंक्शन के साथ. अभी देखो ये इंटरवल क्या है आपकी, 0 to -π, दैट इज -π to 0, -π to 0. पहले वहां पे देखो -π to 0 में -x आ रहा है, यहाँ पे भी -π to 0 में -x आ रहा है. और ये जो इंटरवल है आपकी 0 to π, वहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे भी 0 to π में x आ रहा है. दैट मींस दिस इज नथिंग बट योर एग्जैक्टली f of x. ये f of x जैसे दिख रहा है एग्जैक्टली. ये फंक्शन क्या है आपका, इवन फंक्शन. तो इवन फंक्शन होगा तो क्या पूछा है उन्होंने, a नॉट. a नॉट आएगा या नहीं आएगा? आएगा. जीरो क्या, bn 0 होगा तो a नॉट निकालना पड़ेगा हमें. तो कहने से a नॉट इज इक्वल टू l कितना होगा? कैन यू टेल मी l? Pi, sir. 1/π और 2/π? 2/π. 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 इवन के केस में 2/π आता है. और 0 to π लिखना है या -π to π लिखना है? 0 to 0 to π. इवन फंक्शन इसलिए तो चेक किया हमने. और 0 to π में ध्यान दो, कौन सा फंक्शन है 0 to π में, x है या -x है? X. X. बहुत सिंपल हो गया. देखो अभी ये प्रॉब्लम. तो ये 2/π इसका इंटीग्रेशन x²/2 और फिर पाई डाल दो. 0 के लिए तो 0 ही आएगा. तो 2/π into π²/2. कैंसिल, एक पाई कैंसिल. तो आंसर इज पाई. I hope you are getting. So listen here. जब भी -π to π वाली इंटरवल होगी, इवन ऑड चेक करो पहले. लाइक सिमिलरली 39 में भी आपको चेक करना पड़ेगा. तो ये ऑड है देखो और ये इवन है. ऑड इंटू इवन क्या होगा? Odd. Odd.
Odd. ए नॉट कितना है सॉल्व करने की जरूरत है क्या? No, 0. जीरो है क्या? जीरो लिख दो डायरेक्टली, ए नॉट जीरो। नो नीड टू सॉल्व, बिकॉज ऑड फंक्शन है, नहीं तो सॉल्व करते बैठोगे तो सॉल्व आएगा आंसर कुछ तो, बट वो जीरो ही आने वाला है, तो नो नीड टू सॉल्व। इवन ऑड फंक्शन है तो ए नॉट 100% जीरो आएगा, तो इसका आंसर जीरो है। आई होप यू आर गेटिंग एवरीवन। Yes, Yes, sir. यस सर। So please try to solve all the remaining problems. We are going to stop here today. Okay. So let me take your attendance. तो PDF सेंड करोगे ना? Yeah, PDF I'm going to share with you all. Okay. With Mozilla also I will share it. Sir, have you Let me stop the recording.